Hello guys, welcome back to our channel. As George welcomes you all. So this is semester 2 of science, class 8th. As we are the teachers and we always want our student to be best and advanced, so I have recently purchased a semester 2 books for you. So let's begin. This is the 10th lesson. We will be doing reaching the age of adolescence. The chapter is very important. Nowadays this chapter, most marks will be covered from this chapter, not only in 8th standard but in 9th standard also, in 10th standard. If you will take science na, so it will be helpful for you there also. This is the chapter, the reaching the age of adolescence. I think that all the students in the 7th standard or 8th standard, they reach the ages of the adolescence. So adolescence means a person when he or she they grow to a certain age, certain characteristics appear to them, and that characteristics are known as adolescence. So what are the characteristics, what is that, we will be discussing in the explanation part. Today we will be discussing the workbook. Okay, I will not bore you more, but try to understand what I am trying to say. You will able to do each and everything. So let's begin with a chapter. This is Vikas Science Workbook Part 2. If anyone requires this workbook, please contact me. I will be helping you out from where to the books will be bringing. Standard 8. Okay. So let's go. Chennai Express. Let's go. Reproductive age in the woman starts when their menstruation start. अब menstruation क्या है, menstruation क्या होता है? तो menstruation is a natural process that occurs in the woman. So the menstruation cycle starts ना, the reproductive age start. मतलब after menstruation starts ना, the girl is able to reproductive, मतलब she is able to give the birth to a next child or the next baby. Okay, hyperactivity of which gland causes acne and pimples of the face on the face during the puberty. अब हम जो बच्चे होते हैं वो थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को मूछें आ जाती है और पिंपल्स होने लगते हैं और हम सब डर जाते हैं, यार ये क्या है, ये क्या है, और सब अपने अपने पिंपल्स के लेके टेंशन हो जाते हैं. उसके लिए टीम में बहुत सारी एडवर्टाइज भी आती है, ये लगाओ वो लगाओ, बट आई विल नॉट प्रमोट एनीवन. तो वो क्यों होता है, तो वो इसके लिए होता है बिकॉज हमारे जो फेस के ऊपर जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, वो पिंपल्स और एक्ने को क्रिएट करते हैं. ठीक है. अंडर द इफेक्ट ऑफ विच हार्मोन डस मेमोरी ग्लैंड डेवलप. अब ये मेमोरी ग्लैंड जो है ना, ये गर्ल्स में यूज होता है. गर्ल्स की जो फीडिंग करते हैं ना, जो अपनी बेबीज को फीडिंग करते हैं ना, तो वो ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है. तो वो ग्लैंड होता है गर्ल्स में. तो गर्ल्स के पास जो सेक्स हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन. तो आंसर इज एस्ट्रोजन. विच ग्रुप ऑफ एज इज कवर्ड बाय एडोलेसेंस. तो एडोलेसेंस के लिए कौन सा ग्रुप एज है, तो दैट इज 11 ईयर्स टू लेके 18 ईयर्स के अंदर जो गर्ल है, जो बॉय है, वो कंप्लीटली अपने आप को डेवलप कर देता है. गर्ल्स को अलावा उनका हाइट बढ़ता है, उनका जो हार्मोन्स डेवलप होता है, बॉयज़ का भी हाइट बढ़ता है, मॉस्टेच आते हैं, बॉयज़ को बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, जो शौकीन लोग होते हैं वो. ठीक है. विच इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द ओल्डर एज इन वुमेन कॉल्ड. अब जो विमेन में जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस जो चालू होता है, जिसको हमने आगे पढ़ा था, जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो वो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, तो वो गर्ल्स में एक एज के बाद मतलब वो चीज़ खो देते हैं. मैं उसके बाद गर्ल्स मतलब जो बेबी को डेवलप नहीं कर सकते, तो वो एज होता है, वो एज कम से कम 40 to 45 होता है, और वो चीज को बोलते हैं मेनोपॉज. मेनोपॉज और मेनार्ची. मेनार्ची मीन्स व्हेन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स इन वुमेन इज नोन एज मेनार्ची, एंड दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हेन स्टॉप्स, दिस इज नोन एज मेनोपॉज. ओके, बहुत आसान है. पॉज मतलब रुक जाना और आर्ची मतलब चालू होना. ठीक है. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन द स्टोमेटिक सेल्स ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस के अंदर द आंसर इज wrong.
each and every human being has 23 chromosomes. The answer is wrong. Please correct it. The answer will be B option, 23 chromosomes. ठीक है. Next one, hormones of which gland control the production of सेक्स हॉर्मोन्स. अब सेक्स हॉर्मोन्स कौन कंट्रोल करता है? तो हमारी बॉडी का जो सबसे मेन ग्लैंड है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. इट कंट्रोल द सेक्स हॉर्मोन्स ऑफ द बॉडी. सारी हमारी जो हॉर्मोन्स को जो कंट्रोल में रखता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. विच सेक्स क्रोमोसोम्स ऑलवेज बी देयर इन द अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम. जो ओव्यूम होता है वो विमेन के अंदर प्रेजेंट होता है और वो ओव्यूम के अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. विमेन के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मैन के अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं. तो ओव्यूम लिखा है मीन्स वुमन, और वुमन के अंदर तो हम सिर्फ एक्स ही लिख सकते हैं. विच हॉर्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड इन इनसफिशिएंट क्वांटिटीज इन एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. अगर कोई बंदा या बंदी आपके पहचान वाला है जिसको डायबिटीज की बीमारी है, तो उसके अंदर जो एक प्रोडक्ट है, एक हार्मोन है, वो इनसफिशिएंट है और वो है इंसुलिन. और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है हमारी पैंक्रियास. ये भी एमसीक्यू है, याद रखना. विच हार्मोन प्रोड्यूस इंसुलिन एंड दैट इज आवर पैंक्रियास. सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन ऑफ विच ग्लैंड इज नॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. देखो, अब पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके अंदर थायराइड भी आता है, पैंक्रियास भी आती है, सेक्स ग्लैंड्स भी आते हैं, पर एक बंदा नहीं आता जो है हमारा एड्रिनल. वो अपने आप को राजाशाही समझते हैं, कोई बात नहीं. विच हार्मोन कंट्रोल्स द मेटामॉर्फोसिस और इन द फ्रॉग. अब फ्रॉग भी हमारा एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है. तो वो कौन कंट्रोल करता है? तो वो कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन. कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन. व्हाट इज द मेल सेक्स हार्मोन? मेल के अंदर टेस्ट्रोसन होता है, टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन. ओके. विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ HIV. तो HIV की वजह से हमें कौन सी डिजीज होती है? तो वो होते हैं हमें एड्स. वो बहुत 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 डेंजरस बीमारी है. तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब तुम इसके बारे में डीपली पढ़ो आगे चल के, तो अच्छे से पढ़ना और ध्यान से. हमें कभी भी ये बीमारी ना हो इसकी दुआ करना, और नहीं हो तो बहुत ही अच्छा है ये बीमारी. इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीजेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पेयर? देखो, एस्ट्रोजन ये फीमेल में होता है, मतलब ओवरी. थायरॉक्सिन थायराइड, ओके सही है. फिर इंसुलिन पैंक्रियास, ये भी सही है. फिर ग्रोथ हार्मोन एड्रिनल, हाँ ये थोड़ा गलत है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कंट्रोल में होता है. विच ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स सेक्रीशन? थायराइड. थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स द iodine for its secretion. Okay, now we will begin with the fill in the blanks part. If you have any doubt in the MCQs, you can contact me out anytime. Now the fill in the blanks part. So let's begin with the fill in the blanks. They are also very easy. Endocrine glands are also known as ductless gland. Oh wow, सर हमें तो पता ही नहीं था. अरे हाँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ. The changes occurring at the adolescence are controlled by the hormones. हमारे बॉडी में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो सब कंट्रोल करता है हमारे हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड रीचेस टू द ब्लड स्ट्रीम टू द ब्लड. अरे सर और कहाँ जाएगा? हमें पता है सर, ब्लड स्ट्रीम में हाँ भाई हाँ, इसके लिए तो थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता है. The first menstrual flow begins at the puberty. Puberty मतलब वो चप्पल पहनते वो वाला puberty नहीं, मतलब जो वो नेचुरल प्रोसेस होता है गर्ल्स में, तो वो menstrual flow बोलते हैं, उसको puberty बोलते हैं. मतलब जो हम एज पहुंच जाते हैं, puberty की एज पहुंच जाते हैं, तभी गर्ल्स में और बॉयज़ में थोड़े चेंजेस आते हैं. पर जो गर्ल्स में जो menstrual flow begin होता है उसको बोलते हैं menarche. In women, menopause may occur at the age of डैश ईयर्स. 45 एज के बाद कोई भी विमेन या महिला अपने नए बेबी को जन्म नहीं दे सकती है.
डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन द ह्यूमन बींग्स, एमसीक्यू में भी था 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम अकर्स इन द ह्यूमन बींग। डैश हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पेंक्रियास, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई पेंक्रियास किस में से क्या सिक्रीट करता है, तो पेंक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है। द डैश इज रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड, हाइपरथायरॉयडिज्म इज रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड। डैश ग्लैंड secretes hormones to maintain the correct cell balance in the blood। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक ऐसा ग्लैंड है, सेल नहीं है वो सॉल्ट है, सॉरी उसमें थोड़ा कट गया है, वो सॉल्ट है। तो सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो बैलेंस रखता है हमारी बॉडी को, ताकि हमारे बॉडी में सॉल्ट की कमी ना हो। अगर सॉल्ट कम होता है तो आपको पता है लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, वो इसकी वजह से होती है। इसके लिए हमको बोला जाता है अच्छा नमक खाओ, अच्छा नमक खाओ, टाटा सॉल्ट खाओ और भी अच्छी चीज़ें खाओ, ताकि हमें हमारी बॉडी में कोई भी सॉल्ट लेके कोई बीमारी ना हो। आयरन रिच फूड इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डैश। आयरन मतलब खून, खून सही बात है, आयरन मतलब खून, और आयरन रिच फूड मतलब खून से भरा हुआ, खून से लथपथ खाना हमें किसके लिए खाना चाहिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड का अच्छा और बेहतरीन और बहुत ही मस्त प्रोडक्शन हो, इसके लिए हमें खाना चाहिए आयरन रिच फूड। आई एम वेरी सॉरी। Now we will not get any disturbance. I am really sorry for that. Now the answer the question in short words. From where does the hormones get secreted to control the production of the sex hormones? सेक्स हॉर्मोन्स के कंट्रोल में हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है जो हमारे सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है और हमारी सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, और उसकी वजह से हमारी सब चीज़ें ठीक रहती है, हमारे सेक्स हार्मोन सब ठीक रहते हैं। What is thickened lining of the uterus? अब यूट्रस जो होता है फीमेल में प्रेजेंट होता है, along with the blood vessels being shed off called। अब menstruation मतलब विमेन होता है, विमेन के अंदर एक यूट्रस डेवलप होता है। यूट्रस मतलब वो आपको थोड़ा आगे चलेंगे, अभी तो यूट्रस याद रखना, थोड़ा आगे चलेंगे तब बताया जाएगा। अब यूट्रस डेवलप होता है, अब वो जो यूट्रस होता है तो एक टाइम आता है, वो एक पीरियड होता है विमेन के अंदर, वो पीरियड के अंदर वो जो ब्लड वेसल, जो यूट्रस की जो ब्लड वेसल जो डेवलप हुई होती है वो शेड हो जाती है, मतलब वो टूट जाती है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द गैमेट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स? पर मेल में 23 क्रोमोसोम्स और फीमेल में भी 23 क्रोमोसोम्स, 23 गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। Disturbance in the function of which gland cause diabetes? Oh, डायबिटीज मैंने आपको पहले भी बताया था, डायबिटीज हमारा एमसीक्यू में भी था डायबिटीज। तो अभी हम बता देते हैं किसकी वजह से, पेंक्रियास की वजह से हमें डायबिटीज हो सकता है। अगर पेंक्रियास डिस्टर्ब हो गया, शायद हम एमसीक्यू नंबर 4 भूल सके, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर द एड्रिनल ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड, जैसे आपको अगर आपका नाम राम है तो राम का काम भी बुलाते हैं, श्याम भी बुलाते हैं, चाचा भी बुलाते हैं, मामा भी बुलाते हैं, पर वैसे ही हमारे एड्रिनल ग्लैंड का नाम दूसरा है सुपरनल ग्लैंड। सुपरनल ग्लैंड, विच ग्लैंड इज फाउंड इन द हेड? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं देखा है ना, तो मेरा वीडियो को 1 मिनट पॉज कीजिए और गूगल पे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए। बिल्कुल पी शेप का होता है, पी फॉर पैरट जो होता है ना, वैसा ही। अभी बड़े हो गए तो पी फॉर पैरट लर्न नहीं करेंगे, अभी लर्न करेंगे पी फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे खोपड़ी हेड के अंदर। सबके पास है ना, भगवान ने भेजा है ना, भेजा तो भेजा, ऐसा नहीं वाला तो नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, विच ग्लैंड सिक्रीट्स इंसुलिन हार्मोन? अब इंसुलिन हार्मोन, सर क्या ही बात है, सबको पता है, सबको पता है, हाँ पता है भाई, लिख दो, पेंक्रियास। विच ग्लैंड इज फाउंड इन द थ्रोट रीजन? थ्रोट मतलब क्या होता है रे बाबा? थ्रोट मतलब जो गला, गले को बोलते हैं इंग्लिश में थ्रोट। अरे सर ये तो पता था हमको, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। तो थ्रोट के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है? सभी को पता है, सलाइवरी ग्लैंड, जो हमें पूरे दिन सलाइवा 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 प्रोड्यूस करते ही देता है, शांति नहीं रहता।
अच्छा, हुज अडल्ट एनिमल इज अ फ्रॉग। अब सब पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है, कुछ नया नहीं, फिर भी बता देते हैं। टेडपोल जो होता है, टेडपोल मतलब फ्रॉग का जो छोटा बच्चा होता है उसे टेडपोल कहते हैं, और फिर उसका जो अडल्ट एनिमल होता है उसको फ्रॉग कहते हैं। अभी आने वाला था, अभी अभी हमें दिखा नहीं क्योंकि बारिश कम हुई थी इस बार, तो हमें ज़्यादा फ्रॉग दिखे नहीं। फ्रॉग मतलब, अगर किसी को फ्रॉग का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, मेंढक जो ग्रीन वाले होते हैं हमारे पास खुद लेजेंड्स है जिसको फ्रॉग का मतलब शायद नहीं पता होगा। बाय विच वायरस इज एड्स कॉज्ड? ओ माय गॉड, मेरे को बहुत डर लगता है भाई ये बीमारी से। एड्स इज कॉज्ड बाय दी HIV। HIV का एक वायरस होता है जो अगर हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गया ना, तो उसकी वजह से हमें बहुत घातक वायरस हो सकता है जो है एड्स, और वो एड्स की वजह से इंसान को बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। और एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ जितना है उतना ही। ट्रू और फॉल्स है, ट्रू लिखना था पर कोई बात नहीं, अगली बार ट्रू फॉल्स लिखेंगे। प्यूबर्टी बिगिंस विद द एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ये सही लिखा है, आंसर ट्रू आएगा, उसमें गलत लिखा हुआ है फॉल्स। एक्ने एंड पिंपल्स आर सीन ऑन द फेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द एड्रिनल ग्लैंड। नहीं बाबा नहीं, मैंने आपको आगे बताया था एक्ने किसकी वजह से आता है, क्योंकि ऑयल और पिंपल्स की ऑयली ग्लैंड की वजह से, ऑयल ग्लैंड की वजह से आते हैं, ना कि एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो आंसर बिल्कुल रॉन्ग। एड्रिनल ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। अरे भाई कुछ भी नहीं फेंका जाए तो रॉन्ग आएगा, रॉन्ग। हॉर्मोन्स रिलीजिंग फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर केमिकल सब्सटेंस। अरे हाँ भाई हाँ, अभी क्या भगवान से परमिशन मांगू क्या? सही है आंसर, पता है सबको। इन फीमेल्स द ड्यूरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इज फ्रॉम मेनार्ची टू मेनोपॉज। सबको पता है भाई, मैन ओपॉज, सही बात है। पहले मेनार्ची होता है जब गर्ल्स एडोलेसेंट एज पे पहुंच जाती है, फिर मेनोपॉज हो जाता है जब गर्ल्स एडोलेसेंट एज पे पहुंच, मतलब वो जो ओल्ड एज हो जाती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी इज एट द टाइम ऑफ बर्थ। नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी तभी कर सकते हैं जब वो फीमेल, जब उसको पता है कि उसके वो प्रेगनेंसी में है, तो वो तभी हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं वो फीमेल का। तो ये रॉन्ग हो सकता है आंसर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ तो कोई भी कर सकता है। हम तो, हमारे पास जो मशीन्स है, जो इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे तो टेक्नोलॉजी, पर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हम जब फीमेल प्रेग्नेंट तभी हम उसका बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। पैंक्रियाज प्रोड्यूस्ड इन इंसुलिन हार्मोन। अरे भाई पता है भाई, कितनी बार पूछोगे। ठीक है चलो, हो गया खत्म, मैं सब ने लिख लिया, डन। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंसेस। अब लिखा तो 1 सेंटेंसेस में, मैंने भी कोशिश की है 1 सेंटेंसेस में ही जाए, ज़्यादा बड़ा ना करे। When which group age is covered by the adolescence in humans? अब humans मतलब गर्ल भी आ गई, बॉय भी आ गया, और भी कोई बचा है तो भाई आ जाना। तो द एज ऑफ एडोलेसेंस इन ह्यूमन इज बिटवीन 10 years to 19 years ऑफ द एज। 19 साल के बाद न तो वो लड़की की हाइट बढ़ेगी, न वो लड़के की मूछे बढ़ेगी, मूछे तो बढ़ेगी, अरे मजाक कर रहा हूं, वो लड़की की भी हाइट नहीं बढ़ेगी, ना वो लड़का ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, और भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी जिसमें, जो हमारे 19 ईयर्स के बाद हमारे बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा ही कुछ कर लिए तो 19 ईयर्स तक, तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। जितना जो तरक्की करनी है, जो बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉयज़ को गर्ल्स को, जो पढ़ाई में ध्यान देना है, हमारा ब्रेन भी बहुत शार्प होता है, हम क्या बोलते हैं जवान होते हैं ना, तो उसमें अपने आप को बहुत मतलब खूबसूरत समझते हैं, तो वो हमारा 10 years to 19 years का एज है। उसके बाद तो वही जो हमारी राज कहानी है, चलें पढ़ाई करने, और तो क्या ही कर सकते हैं। वॉट मेक्स द पर्सन टॉल ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी अगर एक इंसान ने रिसीव कर लिया है तो उसकी वजह से उसको क्या मिलेगा, उसकी वजह से उसका हाइट कैसे बढ़ेगा, तो उसकी वजह से, किसकी वजह से बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द जीन्स की वजह से, उसकी जो पेरेंट्स की वजह से, उसके अंदर जो जीन्स आए हैं उसकी वजह से उसकी हाइट में ग्रोथ आएगा। द जीन्स विच वी इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स मेक टॉल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। हमें
इंस्टॉल करने की पूरी ताकत रखता है, जो हमारे बॉडी में हमारे जो जीन्स है, हमारे जो पेरेंट्स ने हमें दिए है, वो पूरी ताकत रखता है हमें ग्रोथ करने की। विच ऑर्गन इज नोन एज एडम्स एप्पल। अगर मेरे जो बॉयज़ है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जस्ट अगर आप अभी तो नहीं, आपने बहुत गर्ल्स भी देख रही है जो वो भी सुन सकती है, तो अगर आपने किसी भी मैन को देखा है, मैन को तो अभी अपने फादर को भी देख सकते हो, अगर अपने फादर के जो थ्रोट है, जो गले का पार्ट है, उधर एक देखना एक छोटा सा बोन जैसा बाहर निकला है, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। वो इसके लिए जब हमारे जो बॉयज़ हैं वो एक एडोलेसेंट एज पे आ जाते हैं, तभी उनका जो वॉइस है वो क्या है, वो ऐसा हो जाता है ना, हम डर जाते हैं, वो वॉइस सुन के इसके लिए होता है क्योंकि जो उनका एडम एप्पल है वो डेवलप हो चुका होता है, वो एडम एप्पल बन चुका होता है। पहले छोटा एप्पल होता है, फिर बड़ा एप्पल बन जाता है, फिर हो जाता है भाई, हो जाता है। वाई डज समटाइम्स वॉइस बिकम होर्स इन द एडोलेसेंट बॉयज। होर्स मतलब बोलते हैं कड़क, भारी वाली आवाज। क्या है? कुछ भी नहीं है सर, पढ़ाई कर रहे हैं सर, क्यों हैरान करते हो सर, बेकार है, बच्चों को क्यों डराते हो। Under the influence of hormones, larynx grows prominent, vocal cords become longer and thicker। अभी हम जब एडोलेसेंट एज पे पहुंच जाते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है वो वोकल कॉर्ड्स की वो लॉन्गर हो जाती है, थिकर हो जाती है, इसके से हमारी वॉइस जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, नेचुरल है, रोक सकते हैं क्या, रोक के दिखा ले बाबा। Which glands are not endocrine glands? The glands which do not release product are known as exocrine gland, not endocrine glands। अरे भाई ये तो सर बहुत ही आसान निकला। What is a hormone? तो hormone are the body's chemical messenger। जैसे आप फेसबुक का मैसेंजर यूज़ करते होंगे, सब लोग करते हैं, मुझे पता है, व्हाट्सएप मैसेंजर भी यूज़ करते हैं, तो वो फिजिकल मैसेंजर है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल मैसेंजर है, जो व्हाट्सएप है ना हमारी बॉडी का, उसको बोलते हैं हॉर्मोन्स। गिव द नेम ऑफ द सेक्स हॉर्मोन्स। अरे सर ये तो हमें पहले से आता था। द टू मेन सेक्स हॉर्मोन्स आर एस्ट्रोजन, अब वो तुम बताना वो किसके अंदर प्रेजेंट है, एंड टेस्टोस्टेरोन, अभी ये भी तुम बताना। चलो बता ही देता हूँ। एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है फीमेल के अंदर और टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है बॉयज के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनार्जी? अरे सर कितनी बार पढ़ाओगे, अरे भाई क्या कर सकते हैं। द टाइम इन अ गर्ल्स लाइफ व्हेन मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट बिगिन, जब कोई भी फीमेल की बॉडी में जो नेचुरली एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है उससे कहते हैं मेनार्जी। What is menopause? अरे सर क्या ही पूछ लिया आपने। The time when reproductive is declined in a woman is known as menopause। मतलब जब वो वीमेन प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, जो वो वुमन दूसरे बेबी को बर्थ नहीं दे सकती, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मैन ओपॉज, मैन आर्ची। What is the legal age of the boys and the girls in our country for marriage? The legal age for the marriage of the boys is at 21 years and the girls at the age of 18 years। अबे ऐसा नहीं 18 बोला तो सब लड़कियां चली शादी करने के लिए, ये सिर्फ बताने के लिए हमें पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। ऐसा बोले सर 18 बोल दिया, चलो चलो 18 के हो गए, चलो शादी करने, कोई जरूरत नहीं भाई, अभी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। Which hormones control metamorphosis in the frog? Thyroid hormone controls the metamorphosis in frog। अभी ये फ्रॉग का सर कहाँ आ गया बीच में, क्या कर सकते हैं भाई, फ्रॉग तो फ्रॉग है, अब उसे भी तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना। What is the meaning of balanced diet? जब तुम खाने बैठते हो ना, आजू बाजू देखे बिना जो खाते रहते हो खाते रहते हो खाते रहते हो ना, उसे बैलेंस डाइट नहीं कहते। बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जब हम सब आजू बाजू देख के एक प्रॉपर अमाउंट पे 2 रोटी, थोड़ी सब्जी, थोड़ा चावल, थोड़े सलाद, थोड़े पापड़, थोड़ी भिंडी, मस्त को आराम से बैठ के शांति से खाया जाए, उस चीज़ को बोलते हैं बैलेंस डाइट हमारी हिंदी भाषा में। अब इंग्लिश भाषा की बात करें तो अ डाइट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड एंड द
provide the adequate amount of nutrients. हाँ सही बात है सर, सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, आप गलत नहीं बोलते, हमें यहाँ पता है, हमें गलत नहीं बोलते हम कभी। तो वो डाइट जिसके अंदर हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो हमारी बॉडी को एकदम हेल्पफुल रहे और हमारी बॉडी ग्रोथ करे, उस डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट। अरे भाई सर क्या ही बता दिया सर, क्या ही बता दिया। स्टेट द नेम्स ऑफ द आयरन रिच फूड। अभी आयरन आपको पता है, आपको पता है कि आयरन कहाँ पे यूज होता है? हाँ सर पता है ना सर, हेमोग्लोबिन में। तो वो कहाँ पे, उसके फूड के नेम बताओ जो आयरन बढ़ा सकता है। बीन्स है, लेंटिल्स है, कैश्यू है, लीफी वेजिटेबल्स है, और सबसे फेवरेट मेरा वाला जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्या क्या सर? बीटरूट। यार आपको नहीं पता था यार, क्या ही सर आप तबाही मचाते हो। व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। कोई बात नहीं, कर दिया जाएगा 2 मार्क में एक्सप्लेन। तो मेंस्ट्रुएशन और अ पीरियड इज अ नॉर्मल वेजिनल ब्लीडिंग। अब वेजिनल क्या है? तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है that occurs as a part of a woman's monthly cycle. Every month your body prepares for the pregnancy. If no pregnancy occurs, the uterus or the womb shields living sheds its lining. The menstrual blood is partly blood and the partly tissue from inside the uterus. सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ा बता देते हैं हम आपको क्या होता है। तो वीमेन के अंदर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, कुछ 20-25 डेज की होती है। तो वो साइकिल कैसा होता है कि भाई वीमेन का जो हार्मोन जो होता है वो एक यूट्रस डेवलप करता है। वो यूट्रस इसके लिए डेवलप करता है कि भाई अब जैसे वीमेन के अंदर यूट्रस डेवलप होता है ना, उसके बाद क्या होता है, वीमेन जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। हर मंथ नेचुरली वीमेन के अंदर यूट्रस डेवलप होता है कि भाई अगर वो प्रेगनेंसी होती है तो वो कर सकती है, पर अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसके बाद क्या होता है, वो जो यूट्रस जो होता है वो अपना जो इनर लिनिंग है उसका जो ब्लड है वो शेड करना शुरू करता है। जैसे 20 डेज के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो ब्लड शेड होता है उसको बोलते हैं भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वो हर 20-30 डेज में फीमेल्स में होता है और इसकी वजह से उनको थोड़ा ब्लड का जो रिलीज होता है उसमें से। स्टेट 4 फिजिकल चेंजेस सीन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन द बॉयज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो बॉयज का या तो फिर गर्ल्स का प्यूबर्टी चेंज पूछेंगे, चैलेंज है आपसे। द चेंज दैट अकर्स इन द बॉयज आर एज फॉलोज। अच्छा सर बहुत अच्छा, अरे सर क्या ही बता दिया आपने। एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस्टल। अब ये क्या है सर? ये एक मेल सेक्स ऑर्गन है। पेनिस एनलार्जमेंट, ओके सर, हाँ ये तो पता है सर। प्यूबिक हेयर अपीयर्स, हाँ सर ये भी पता है, बड़ी बड़ी मूछे। फिर वेट ड्रीम्स, अच्छा भाई हाँ ये भी समझ गए हम। फिर हेयर अंडर द आर्म एंड ऑन द फेस, अरे हाँ सर ये तो पता ही है सर। 6 नंबर वॉइस चेंज, हाँ कोई छोटा बोलता है कोई बहुत बड़ा बोलने लगता है। एंड द 7 नंबर इज एक्ने एंड पिंपल्स। अब सब बॉयज के एक्ने एंड पिंपल्स नहीं होते पर कुछ लोगों को होते हैं, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली है, नेचुरली आते हैं और नेचुरली चले भी जाएंगे, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आंसर इज वेरी इजी बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज कीप लर्निंग इट। स्टेट द 4 फिजिकल चेंज सीन इन द गर्ल्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। अब ये सर अरे हाँ भाई हाँ वही वाला प्यूबर्टी। द चेंजेस दैट अकर्स इन द गर्ल्स आर एज फॉलोज। अरे वाह सर वाह। देयर हिप्स बिकम मोर राउंडेड एंड दे जनरेट मोर डिफाइंड वेस्ट। अब हिप्स मतलब कौन सा पार्ट सर वो बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हिप्स बोलते हैं, जो लेग्स वाला पार्ट होता है। द वुल्वा वेजिना एंड द निपल्स गेट बिगर, हाँ वो उनकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं अच्छे से। द ब्रेस्ट बिगेन टू डेवलप, हाँ उनकी जो ब्रेस्ट जो होती है वो भी डेवलप होना शुरू करती है। प्यूबिक हेयर अपीयर्स, हाँ सर ये तो कॉमन है सर दोनों में। इंक्रीज इन द म्यूकस प्रोड्यूस्ड इन द वेजिना, हाँ उनका जो वेजिनल जो उनका ऑर्गन है वो म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। What are the sex hormones? Why are they named so? State their function.
सेक्स हार्मोन आप तो कैसे कैसे बोलते हो भाई? देखो, पढ़ने के लिए हमें, अभी तो हम तुम लोग अभी सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में हो, अभी 8th के बाद तुम्हें 9th में जाना है, 9th के बाद तुम्हें 10th में जाना है। तो ये सब हमारी नेचुरल बॉडी प्रोसेस है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ने में ध्यान देना है। द हॉर्मोन्स विच the hormones which help and control the formation of secondary sexual characters are called the sex hormones. They are named so because they control the sexual activities and help to distinguish boys and from girls. The functions are the fundamental change in the growth to develop the stimulate development of the secondary sexual characters. सर वाह वाह, क्या इंग्लिश है आपकी सर, थैंक यू थैंक यू। तो अब सेक्स हार्मोन होते क्या है? तो जो हमारी बॉडी के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जैसे हमारे हेयर का ग्रोथ है, मतलब फेस हेयर का ग्रोथ है, बालों की, वो सर के बालों की बात नहीं कर रहा, फेशियल हेयर का ग्रोथ है, गर्ल्स पे जो ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज है, और जो बॉयज़ पे जो भी डेवलपमेंट है, ये सब जो कंट्रोल करके रखता है ना, इसको बोलते हैं अपने के सेक्स हार्मोन्स। अब ये सेक्स हार्मोन इनका नाम इसके लिए पड़ा क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं कि भाई जैसे गर्ल्स है तो और बॉयज़ है तो हमें कैसे पता चलेगा ये लड़का है लड़की? सर वो तो सर, पर हमें वो एक यंग एडोलेसेंट गर्ल और एडोलेसेंट बॉयज़ का डिफरेंस करना है, तो हमें उनकी जो फंक्शंस है, उनकी जो एडोलेसेंट्स के बाद की जो प्यूबर्टी के टाइम की जो फंक्शंस है, उससे हम इजीली उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए उसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स। और ये इनके फंक्शन क्या है? तो इनके फंक्शन वही है, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और अच्छे से बॉडी का ग्रोथ करे और ध्यान दे कि भाई किसी में कोई तकलीफ ना हो, बस। और तो क्या ही है, ज़्यादा क्या बताएं इसके बारे में। वॉट इज कॉल्ड प्यूबर्टी स्टेट्स इट्स टाइम पीरियड। हाँ, ये भी आंसर बहुत अच्छा है, तगड़ा आंसर है। प्यूबर्टी इज द टाइम इन द लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। अब जब तुम नहीं अपने आप को बहुत जवान समझने लगते हो, हाँ हाँ पता है मुझे, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। It usually happens between the 10 years to 14 years in girls and 12 to 16 years for boys। हाँ भाई हाँ, सबको पता है कि भाई जो गर्ल्स है उसमें प्यूबर्टी चलती रीच होती है, और जो बॉयज़ है उसमें बाद में रीच होती है। और उस टाइम पे जो 12 to 16 ईयर्स है ना, बॉयज़ अपने आप को मतलब वो क्या बोलते हैं, शाहरुख खान समझते हैं, और गर्ल्स तो अपने आप को क्या ही समझती है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, पर हमें ध्यान देना है, हमें पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है, हमें कोई भी गलत चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। सब अपने ये जो हमारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं ये सब होती रहेगी, उससे पर हमें हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है, अपने आप को बहुत बड़ा राजाशाही नहीं समझ लेना है, ठीक है। इट कॉजेज द फिजिकल चेंजेस एंड अफेक्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफरेंट। यहाँ सही बात है, हमारी बॉडी के जो फिजिकल चेंजेस होते हैं कैसे होते हैं, वो गर्ल्स के अंदर कुछ डेवलपमेंट होता है, बॉयज़ के अंदर कुछ डेवलपमेंट होता है, और वो सब पता है, हमने आगे पढ़ा है, ठीक है। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है, बस ध्यान दो, काम पूरा। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, अ बॉय इज 9 years old। अरे वाह वाह, क्या बात कर दी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ही विल अटेन एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड? अरे सर, ये तो हमें पता ही नहीं है। अरे तो बता रहा हूँ ना भाई, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, जो बॉयज़ का परसेंटेज भी दिया हुआ है, उसका कितना इंक्रीज हो सकता है, और उसमें उसकी हेल्प से हम आज एक हाइट फाइंड करेंगे। आज समझो आप 9 ईयर्स के हो, ठीक है, तो 9 ईयर्स के आप अगर 120 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा होगा 9 ईयर्स में 120 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी भी मैं कुछ 150-160 सेंटीमीटर का हूँ। हाँ, एज नहीं बताऊंगा, नहीं, ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा, खाली अपनी हाइट बता रहा हूँ। तो 9 ईयर्स का है और उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। तो जब वो एडोलेसेंट एज पे पहुंचेगा, मतलब वो अपना ग्रोथ पीरियड पूरा ख़त्म कर देगा, तब वो कितना इंक्रीज कर सकते हो? सर 160 सेंटीमीटर, बस सर। अरे भाई 160 सेंटीमीटर मतलब 40 सेंटीमीटर का इंक्रीज कर सकता है। तो ये 40 सेंटीमीटर भी इंसान के लिए बहुत होते हैं अपने जीवन में। लोग एक एक सेंटीमीटर की वजह से पीछे रह जाते हैं हाइट की वजह से, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड किया? देखो 120 सेंटीमीटर पहले हाइट, जो उसका करंट हाइट है, अब मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75। तो मैं भी चाहता हूँ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपनी हाइट को मेजर करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उनकी हाइट कितनी है, ठीक है, और अभी कितनी है और ग्रोथ पीरियड के बाद कितनी होगी, ठीक है। समझ गए रे बाबा? ओके चलो। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स
during the puberty in the boys and the girls. During puberty you can expect a lot of changes to your body. Your genitals will get bigger in people with the vagina. Uterus and the fallopian tubes will develop in people with the penis. The develop penis and the testes will get bigger. हाँ सर पता है सर, पता है कि भाई हमारे जो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जब हम एक प्यूबर्टी वाली एज में हो जाते हैं. तो बॉयज़ के अंदर भी थोड़े चेंजेस होते हैं और थोड़े गर्ल्स के अंदर होते हैं. तो वो क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो गर्ल्स के अंदर क्या होता है? वेजिना है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ये सब डेवलप होती है. बॉयज़ के अंदर क्या होता है? पेनीज है और टेस्टिस है, वो बिगर होती है. वाह सर वाह, वाह सर वाह, थैंक यू. डिफ्रेंशिएट द वर्ड पेयर मेनार्ची एंड मेनोपॉज. सर बस करो बाबा, बस करो. अरे कोई बात नहीं, लास्ट बार है. द मेनार्ची इज द बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल. मेनोपॉज इज द एंडिंग फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल. सर कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ. अरे हाँ भाई बता रहा हूँ ना. मेनार्ची मतलब वो जो चीज़ जहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वुमेन की जो रुक चालू होती है उसको बोलते हैं मेनार्ची, और वो साइकिल जब रुक जाती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज. अरे वाह सर वाह, अरे वाह वाह वाह. ठीक है, कोई बात नहीं. बिगिनिंग ऑफ द मेनार्ची इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 16 ईयर्स. सर थैंक यू. हाँ कोई बात नहीं. मेनोपॉज अकर्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 45 to 50 ईयर्स. 50 ईयर्स तक महिला की जो गर्ल्स की, महिला तो क्या, तुम तो गर्ल्स हो, तो गर्ल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाती है. ठीक है. व्हाट हैपेंस इफ द एग इज 40 if an egg is fertilized. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. जो हमारी गर्ल्स है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन के अंदर उनके अंदर हर मंथ एक एग प्रोड्यूस होता है. वो एग प्रोड्यूस होता है, वो 30 डेज का कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. जब वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो रिलीज हो जाता है. अगर एग फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स के अंदर. फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब दैट लिंक्स एन ओवरी टू द यूट्रस. और वो एग जब मतलब डेवलप हो जाता है, जब फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब के साथ, फैलोपियन ट्यूब हमारी जो फीमेल है उसके अंदर प्रेजेंट होती है और उसके अंदर से वो ट्रैवल करके यूट्रस पे पहुंचता है. और यूट्रस में मेन हमारा जो बेबी का डेवलपमेंट है, जो तो जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे की थैली. अगर आप लोगों ने सुना हो, कुछ नया नहीं है, सब हमारी नेचुरल प्रोसेस है जो हमें गॉड से गिफ्ट है, वही बता रहा हूँ तुम्हें. इफ द एग fertilized successfully travels down the fallopian tube and implants in the uterus and embryo starts growing. हाँ, और फिर उसके बाद हमारा एम्ब्रियो बड़ा होता है और उसके बाद जन्म होता है एक नए बेबी का. सही बात है सर, सही बात है. Mention the functions of the hormones of the adrenal gland. Adrenal gland produces hormones that helps regulate your metabolism, immune system, blood pressure, response to the stress and other essential function. Adrenal gland are composed of the two part, the cortex, the medulla, which are responsible for producing different hormones. सर कैसे पढ़ डाला सर, बता रहा हूँ कि भाई हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स है उसके फंक्शंस क्या है. तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन ये सब है कि भाई वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और भी हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है. और वो एड्रिनल ग्लैंड, उसके अंदर टोटल 2 मेन पार्ट्स है. उस एक का नाम है कॉर्टेक्स और दूसरे का नाम है मेड्यूला. कौन ला, किसको ला? अरे नहीं सर, मेड्यूला. हाउ इज एड्स स्प्रेड? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये शायद हमारी बुक का अभी फर्स्ट पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद आप लोगों को जलसाई करनी है. बाय ब्लड प्रोडक्ट्स, अनक्लीन नीडल्स, by mother to a baby, by pregnancy, labor or nursing, by having a unprotected sex, और by breast feeding. हाँ, ये 4 चीज़ों की वजह से हमारे एड्स स्प्रेड, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से एड्स स्प्रेड होता है, पर हम हमारे हिसाब से, हमारे जो एड्स स्प्रेड के हिसाब से हम 3 ही चीज़ को लर्न करेंगे. बाय ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर शायद किसी को एड्स वाले पेशेंट को अगर इंजेक्शन लगाया, और वही इंजेक्शन अगर आपको लगा दी जाए तो उससे एड्स स्प्रेड हो सकता है. और मदर अगर प्रेग्नेंट है तो वो उसके और मदर के अंदर शायद एड्स है,
तो वो अपने बेबी को भी अफेक्ट कर सकता है। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो हम जो नेचुरल प्रोसेस जो होती है वो अगर अनप्रोटेक्टेड करे तो उससे भी एड्स हो सकता है। और बाय ब्रीस्ट फीडिंग अगर जब मदर अपने बेबी को जब फीडिंग कर रही है, जैसे जो मिल्क दे रही है, तो उसकी वजह से भी अगर अगर मदर के अंदर है तो बेबी के अंदर भी जा सकता है। और यहाँ पे हम हमारे फर्स्ट पार्ट की एंडिंग करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद एस जॉर्ज।